Seventh canto, 7th chapter, 39 shloka. Rayaha kalatram pashavasutadayo grihamahi kunjara kosha bhutayaha sarve artha kama shanabhangurayushaha kurvanti marsat sakyam priyam chalaha. One's riches, beautiful wife and female friends, one's sons and daughters, one's residence, one's domestic animals like cows, one's elephants, horses, one's treasury, economic development, sense gratification. Indeed, even lifetime in which one can enjoy all these material opulences are certainly temporary and flickering. Since the opportunity of human life is temporary, what benefit these material opulences give to a sensible man who has understood himself to be eternal? So who is instructing here? Prahlad Maharaj is instructing his friends, because he is now countering. गुरुकुल में षंडार्कम अमर का क्या सिखा रहे थे? यही सिखा रहे थे, कैसा पैसा बनाना है, कैसा सेठ होना है, कैसे राजा बनना है. एंड यही चीजें टुडे बिकम द एस्पिरेशन इन द हार्ट. हरेर गुणाक्षिप्तमति, ये तो होता है महान भक्त का दिल. और ये कर्म बीज और ज्ञान बीज से आदमी खत्म हो जाता है, भक्ति लता बीज नहीं. सो इफ यू हैव अ रॉन्ग एसोसिएशन, अ रॉन्ग काइंड ऑफ लीडर्स, रॉन्ग काइंड ऑफ टीचर्स, these all things will be like stool infecting the heart. बहुत बुरी हालत. The society becomes so difficult. Now here the situation he is saying, Prahlad Maharaj, you see, whole life, पूरा जिंदगी आप काम कर रहे हो इन चीज़ों के लिए. Whole life you are working so hard. Why CAs are so much important today? Economic development. So he is calculating and he is giving one by one in sequence only. सबसे पहले what person may be attached to. Now this instruction is for a man, for a woman Italy, vice versa. First thing attached to is a wife. And sometimes if he has other girlfriends, he's very attached to them. First satisfaction he has in life. He doesn't see it is temporary. Then he's attached to his house, big bungalow. So much, people put so much effort. They spend crores and crores building a beautiful house. हम लोग गए थे एक घर में, देख कितना बड़ा घर था वो. हाँ, आप भी थे ना, इतना बड़ा, क्या क्या डिटेल बनाया था. ड्रीम हाउस सोच लो. एंड देन even person is also attached to the household animals. You know, some pets and all he's attached to. पहले गाय भी होती थी, अभी गाय नहीं रहती, खाली कुत्ते. So he may be attached to some animals. So many things he is dreaming. But it does not see it is temporary. This is a very important point. Prabhupada says again and again, हमारा रियल प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो नहीं दिखता. एंड इन परस्यूट ऑफ दीज इकोनॉमिक, अब सबके पास तो ये सब तो नहीं है, बट होल परस्यूट ऑफ दीज person works so hard. And right from top, even government, that's the only focus. All the problem in the world will be over. जरा ये सब हो जाए ठीक. We are not saying there should be no economic development. We are not saying all that. But the point is that you forgot your main problem. And you got lost into these problems. So many people, they work extra work. There was one lady, he was a doctor. And she used to come to temple long time ago, 10, 15 years ago. And I asked her,
how many rounds you chant? Because she was philosophically total convinced थी. 3-4 राउंड करते. मैंने कहा क्या इतना टाइम नहीं मिलता क्या? आपको तो पूरा समझ आ गया. हाँ समझ आ गया, लेकिन 3 शिफ्ट काम कर रही हूँ. किसने बोला 3 शिफ्ट काम करने को? So actually if you see, we have also created a funny civilization. पहले क्या जरूरत थी? Economic development proper says means cow. है छुट्टी. गाय लाओ, थोड़ा खेती करो, आपका economic development over. All problem is over. You can live very peacefully. And ये श्लोका तो ये प्रहलाद महाराज वैदिक सेटिंग में बोल रहे हैं, जब economic development was very simple. But Prabhupada in the purport knows the present situation and he says, it is now उग्र कर्म. बहुत complicated हो गया अभी तो. So complicated, economics में नोबेल प्राइज होते हैं. I wonder, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट हो गया, उसमें जो घुस जाता है, यू नो, एवरी ईयर दे गिव प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो, नोबेल प्राइज. क्या भाई, गाय लाओ, जमीन लाओ, उसको नोबेल प्राइज दो. सिंपल. बट सो कॉम्प्लिकेटेड कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट. अभी शेयर ऊपर होंगे नीचे होंगे, रियल एस्टेट ऊपर जाके नीचे, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता. कुछ हो जाता है कल पता नहीं. सो कॉम्प्लिकेटेड इट इज. It has become like a gambling now. It's a mess. We have made so complicated. Suppose today there is some disturbance in some part of the world. वहाँ पेट्रोल लेने जाओगे 200 रुपया लीटर मिलेगा आपको. ऐसा है सिचुएशन हो गया. But previously it was self-sufficient villages. People are peaceful in their village. अब village क्या खुद ही सी peaceful है, उसका गाय है, थोड़ा खेती है, खुश. So we have created a situation where there is so much anxiety for personal maintenance. पहले ऐसा नहीं था. लोग खाने के लिए ऐसा मरते नहीं थे. जैसे I many times asked my mother, because they were up to, we have become older generation. She says गांव में जब खाना बनाते थे 1-2 मुट्ठी और चावल जरूर डाल देते, कोई आएगा भाई. मतलब हिचक नहीं होती थी. आजकल डरते, अरे वेस्ट हो गया, मतलब कोई आ गया, वो आ गया. There was such a nice culture. It was there. True? It was there in the house. It was always, they were welcoming some guest comes. Atiti Devo Bhav was a culture, because economically also people were not so difficult. Prabhupada says no, one time with Bhaktisiddhanta Prabhupada was taking people on a parikrama Vrindavan. Prabhupada ji के गुरु Bhaktisiddhanta Prabhupada. So किसी के घर में गए तो कुछ 10-15 लोग थे, कुछ ऐसा लोग था, one part of it the group में. So some lady, they asked, can we have some milk? तो उसने गर्म करके दूध दिया सबको 1-1 ग्लास. So उसने बोला कुछ पेमेंट करने का. इतना दूध के लिए जाओ, मतलब 10-15 लोग दूध पिले, कुछ नहीं, जाओ. सबके पास गाय होती थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. एक्चुअली इतना मूर्ख का सिविलाइजेशन आएगा. ये जो सिविलाइजेशन है चल नहीं पाएगा. बट वी कांट टर्न इट टुडे. बट अंत में इधर ही आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ओनली सस्टेनेबल. If you have cow and you have land, that is the only way economics is sustainable. What today we are doing, ये ज़्यादा नहीं चलने चलेगा. थोड़ा 50-100 साल में सब खत्म, वापस आ जाएंगे उधर ही. And how much damage we have done. वहाँ समुद्र में देख रहे हैं जितनी मछलियाँ उससे ज़्यादा प्लास्टिक है अभी. ऐसा हालत हो गया है. दिल्ली में अगर आप खाली दिल्ली में रहते हैं, 46 सिगरेट पी रहे हो जस्ट रहने की वजह से. इतना धुआं है. इक्वलेंट टू पहले 14 होता था, अब 46 पहुँच गया. मेरे सो मच हेल वी हैव क्रिएटेड. नदी इतनी शुद्ध होती थी कि आप हाथ डाल के पानी पी सकते हैं, अभी आप छू भी नहीं सकते. ये सब किस लिए किया हमने? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रॉमिस में हमने किया. और क्या किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट? पहले भी लोग भूखे थे, अभी भी लोग भूखे. क्या फायदा हुआ दुनिया को पता नहीं. वैसा का वैसे ही रहा है. लेकिन उसके चक्कर में पूरा पृथ्वी को नष्ट कर दिया हमने. इतना किया. और लोग थोड़ा शांति से रहते थे. सुबह शाम लोग बैठ के भजन करते थे. आप भी किसी को, आप आपको 1 जनरेशन 2 जनरेशन पूछिए, सब घर में सुबह शाम भगवान का दिया लगता था. लोग बैठ के थोड़ा गीता, महाभारत, रामायण कुछ पढ़ते थे, सुनते थे, कथा सुनते. इतना टाइम होता था लोगों के पास. अभी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने ऐसे लोगों को फंसा दिया है कि कोई टाइम नहीं. और इतनी चिंता कर दी है. अभी कभी कभी माँ बाप की भी गलती हम देखते हैं, लेकिन उनको सोचिए, कभी बच्चा अगर मंदिर जाने लगे, थोड़ा जॉब करने, अरे बेटा नहीं है, तेरी उम्र नहीं है. उनको चिंता रहती है, इसको जॉब मिले, पढ़ाई नहीं करेगा, जॉब नहीं मिलेगी. इतनी चिंता.
इतनी चिंता बना दी है कि आप आध्यात्मिक की तरफ देख भी नहीं सकते। वैसे वो तो खाली चिंता का चक्कर है, असली में तो बहुत टाइम में बहुत इंद्रिय भोग भी करते हैं बच्चे लोग, लेकिन चिंता इतना बना दिया है कि लोग इस चीज़ की तरफ देखना नहीं चाहते। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ के लिए चाहिए लोगों को? एट द एंड इंद्रिय भोग के लिए, धर्म अर्थ। देयरफॉर देयर इज जब वेदव्यासी इतना कुछ लिख चुके थे तो नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, क्योंकि वेदव्यासी बहुत दुखी थे। नहीं मैं इतना लिखा लेकिन मैं तो बहुत दुखी हूँ, आप बताइए मेरे गुरु है क्या गलती हो गई मेरे से। सो नारद मुनि बोलते हैं जुगुप्सुतम अबॉमिनेबल, क्या कर दिया वेदव्यास जी? वाई यू हैव नॉट फोकस्ड एंड ग्लोरिफाइड कृष्णा। लोग तो ऐसे ही चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कौन था स्वामी संभोग गोस्वामी, ये सेड पहले आपको सेक्स से फ्री होने का, इसलिए मेरे आश्रम में फ्री सेक्स रहेगा। ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन अमेरिका, इतना पॉपुलर उसके बाद सारी रोल्स रॉयस थी, करीब करीब 60-70 रोल्स रॉयस, बहुत फेमस। इंडिया में भी आश्रम है उसके, ठीक है। अब तो गया, अरे नाम नहीं लेंगे रिकॉर्डेड है आप तो ठीक बोल रहे हैं। सो पॉइंट इज दिस, इट बिकेम सो, ऑलरेडी लोगों को इन चीज़ों की तरह प्रवृत्ति है। आप बोलो आ जाओ भाई दारू पी के भी हो जाएगा, कुछ लोग नशा भी देते हैं, भांग चरस तो बहुत नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत साधु लोग भांग चरस लेते हैं कुछ उसके लिए। तो आप उस चीज़ के तरफ आप चले जाओगे तो आप लोगों को बताओगे नहीं, हाँ कहीं तो बताना पड़ेगा ना उनको, नहीं तो लोग कंसेशन ले लेंगे, उसके तरफ रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे। क्योंकि दो मार्ग है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, और चैतन्य महाप्रभु हमको वैराग्य मार्ग देते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिष्यार्थम एक पुरुषः पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुदि हम प्रपत्ति। ट्रू, इतना आसान नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग में गलती ये, डेंजर ये है कि आदमी रिस्ट्रिक्शन को भूल जाता है, कंसेशन को लेके मजा करने लगता है। जैसे वेद में कहीं कहीं बोला आप मीट खा सकते हो, लेकिन कुछ नियम है। सात्विक लोग है नहीं, तामसिक लोग जो रुक नहीं सकता, भाई ठीक है तो मीट खाना है चलो खा सकते हो, लेकिन जंगल में अमावस्या की रात को बलि देना पड़ेगा खुद, यानी दुकान से खरीद के लाओगे, खुद जाओ अपना बलि करो, वैसे ही 90% लोग भग जाएगा। और उसके बाद उसमें मंत्र बोलो, ये सब मांसा, इतना मूर्ख हूँ मैं, अगले जन्म ये बकरी मेरे को खाएगी। थोड़ा टाइम है, धीरे 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 आदमी समझ जाएगा मैं गलत कर रहा हूँ। करेक्ट, रेस्ट्रिक्शन के साथ कंसेशन दिया है तो आदमी धीरे, तो ये तो मतलब है आपका प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग एक्चुअली मुश्किल मार्ग है, वैराग्य विद्या बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देते हैं आप ध्यान से हरे कृष्ण मंत्र को पहले स्वीकार करो। जैसे ही परेशानुभव भक्ति, परेशानुभव विरक्ति अन्यत्य साथ, धीरे धीरे फिर विरक्ति आएगा। जैसे मंदिर में कोई आता है, हम उसको पहले दिन विरक्ति नहीं बताते, उसको हम हरि नाम देते हैं, आप प्लीज़ जप करिए, आपकी भगवान की सेवा यहाँ से शुरू होगी। जैसे आदमी धीरे धीरे जप करने लगता है, ऑटोमेटिक उसको शक्ति मिलती है, फिर वो छोड़ सकता है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, शुरू में उन्होंने 4 नियम नहीं बताया। शुरू में उनको आश्रम में लोग आते थे, कीर्तन, हाँ हरि नाम सुनो, जप करो। धीरे धीरे एक दिन एक लड़का, प्रभुपाद जी अपना रूम में जाते थे, एक्चुअली हम लोग अभी उतना बुद्धिमान भी नहीं हुए, हम लोग भी वैसा करना था मैंगलोर में, एक स्टोर फ्रंट लेना चाहिए जिसमें 200-300 लोग बैठ सकते हैं, और पीछे एक रूम जहाँ पे हम लोग रहने का, अभी करने का। एनीवे, तो देन लोग वहाँ पे रहते थे, कुछ लोग वहीं पड़े रहते थे, और सुबह शाम प्रभुपाद का प्रवचन होता था, शुरू की बात है। तो एक दिन वो प्रभुपाद जी का सामान छोड़ने कोई आता था उनका रूम में, एंड इट यूज्ड टू बी प्रिविलेज, इतना प्रभुपाद जी का गंभीर कि उनकी सेवा करने में लोगों को प्रिविलेज लगता था। तो एक आदमी आया प्रभुपाद जी के पीछे कुछ उठा के, स्वामी जी ये आपका क्लब है, इसके कुछ रूल्स हैं क्या? क्योंकि जनरली वहाँ उनको क्लब बोलते हैं उनका लैंग्वेज में, कुछ रूल्स हैं क्या? तो प्रभुपाद जी समझे अब टाइम आ गया, नेक्स्ट दिन उन्होंने रूल्स लगा, नेक्स्ट अभी उसके बाद रूल्स लगा, यू नो, आपके
धीरे धीरे नियम, स्लोली स्लोली आपको बहुत एक्चुअली बहुत डेलिकेट होता है, प्रीचिंग करना बहुत डेलिकेट काम है। जब प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स बंधु भाई गए थे अमेरिका में, सॉरी इंग्लैंड गए थे, तो उस टाइम में एक गवर्नर, अमेरिका का जो हेड इंडिया का गवर्नर होता था, लॉर्ड जेटलैंड, बहुत फेमस आदमी था, वो भारतीय संस्कृति से थोड़ा आकर्षित हुआ था। तो वो मिलने आया जब गौड़िया मठ के लोग पहुंचे आपके इंग्लैंड में, तो बोला मेरे को ब्राह्मण बना सकते हो क्या? बोला हाँ, ये 4 नियम फॉलो करना है। इम्पॉसिबल, नशा छोड़ना, मीट नहीं खाना, ये 4 नियम बताए, इम्पॉसिबल। चला गया। तो क्या गलती करी? थोड़ा वेट करो, अभी उसके पास शक्ति नहीं है। आप किसी चीज को बोलो 100 किलो उठाओ, पहले शक्ति तो दो, फिर उठाएगा। अब जाके सीधा लोगों को बोले देखो ये नियम है, ये नियम, आदमी भाग जाएगा, डर जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली प्रभुपाद जी शुरू में बोले थे, जब मूवमेंट शुरू किया था अमेरिका में, अगर मैं तुमको सारे नियम बताऊंगा तुम बाथरूम के बाहर नहीं आ पाओगे वहीं नहाते रहोगे, एक गलती दो गलती। तब भी कितना उनको एक हाउस डिवोटी यमुना देवीदासी से पहली बारी प्रभुपाद जी ने उनको एक बारी कुछ फेस्टिवल था तो उनको कुछ अंदर आए मदद करने। तो शी सेज दैट हर 5 मिनट में, हम लोग तो कुछ शुचि कुछ था नहीं, ना शुचि ना शुचि कुछ नहीं था, तो हम लोग बहुत गलती करते थे। बीच में कान छू लिया, ये नाक छू लिया, हाथ धो क्या 15 बोलो आधे घंटे में 20 बारी प्रॉपर हाथ धो क्या, बिकॉज मालूम ही नहीं था। ऐसी स्थिति में थे वो, बहुत शांति से, एक्चुअली बहुत गंभीर, बहुत ही पेशेंस, जैसे बोलते हैं ना संसार दावना लिद लोका, एक्चुअली कंपैशन होता है। आचार्य को मालूम है कितना गलती है, बहुत कंपैशन। धीरे धीरे ही गेव देम द स्ट्रेंथ so that they could come to the platform. So coming back to the shloka says that don't be lost with these things. Actually हम लोग इसी चीज पे दिल में यही आकांक्षा रहती है, बहुत आकांक्षा रहती है। दिल इन चीजों के लिए धड़कता रहता है, ये मिल जाए। ये बहुत ही that's a very embarrassing situation. Prabhupada says devotee is ashamed when these things become part of the heart. कभी भी खाली बैठे हो, क्या आकांक्षा आपके दिल में, क्या किस चीज के लिए दिल धड़क रहा है? This is not good. True, we cannot change overnight, but aspiration तो रहना चाहिए ना। भागवत क्या शुरू होता है? धर्म प्रोचित कहतवत्तरा परमो निर्मसरा नाम सता। भागवत धर्म means to प्रोचिता। Therefore Prabhupada is quoting Chaitanya Mahaprabhu also here. Na dhanam na janam na sundarim. These are all things. Shri Radha Govinda ki. These things are, these aspirations are haunting in the heart. But it will not go away just because now you have heard true. Prabhupada says these books are for 10,000 years. 10,000 years, these are the conclusions, fixed. Black and white. Shri Radha Govinda ki. ठीक है, ऑल वी ट्राई टू डू, प्रॉपर से जब प्रचार करते हो, जो मेरी किताबों में लिखा है उसको याद करो और अपने शब्दों में समझाओ। वी कैन नॉट चेंज, दीज आर द कंक्लूजन्स फॉर द 10,000 years फिक्स्ड, एंड बट वी हैव टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म। अब ना धनम ना जन्म बोलना तो आसान है, बट वेर इज द पोजिशन, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म। ममा जनमनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। ठीक है, सो वी कैन सी द सोसाइटी टुडे सो मच एब्जॉर्ब्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी के लिए भागते रहते, इतना मेहनत है भाग रहे। एंड दिस श्लोकास व्हेन वी रीड इट सेज अ टोटली इज अ मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। देयर इज इन भगवद गीता में भी डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, इट इज इन द डेमोनिक नेचर। So much money I have today, so much more I'll have tomorrow. It's demonic. Why it's demonic? Because devotee's meditation should be. Devotee बहुत बड़ा चीज है, but devotee's meditation is so much I have love for Krishna today, or so much faith I have today. The faith has increased. You got it? तामसिक आदमी का सुख होता है जब वो सो लिया, आज अंत में रात को सोते समय बहुत अच्छा दिन रहा मेरा, मैं 16 घंटा सोया आज। रासिक आदमी को खुशी होता है,
आज बहुत पैसा बना लिया, बहुत खुशी होता है, क्या अपना पासबुक को देख देख के खुश होकर सो जाता है। क्षत्रिय आदमी खुश होता है और कंट्रोल आ गया, वो राज भी मिल गया मेरे को, वो भी मेरे कंट्रोल में आ गया। और जो सात्विक आदमी है वो खुश होता है, क्या गान, क्या चीज़ समझ आ गई मेरे को। जैसे हम लोग कल समझे ना, प्रभु जी समझा रहे थे क्या डिफरेंस बिटवीन स्वच्छ भारत एंड शौच भारत। हाँ, एक नया चीज़ समझ आ गई तो उसको खुशी होता है। कोई ज्ञान मिला, बहुत खुशी होता है, करेक्ट। अब भक्त को खुशी होता है, अभी भक्त बहुत बड़ा चीज़ है, और भक्त को खुशी होता है आज मेरा भगवान के चरण में आस्था बढ़ गया। जैसे देयर इज अ डिस्कशन इन चैतन्य चरितामृत, एक कोई भक्त आता है चैतन्य महाप्रभु को मिलने मायापुर से, ब्राह्मण, आई थिंक प्रद्युम्न, कि मेरे को कृष्ण के बारे में बताओ। चैतन्य मेरे से क्या सुनते हो, तुम रामानंद राय के पास जाओ। पहली बार ही गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वापस आया, चैतन्य जाओ जाओ, वो बहुत बड़ा भक्त है, तुम गलत नहीं समझो। एंड देन रामानंद राय स्टार्टेड स्पीकिंग, एंड दिस इज छोटा मोट बड़ी बात, बट चैतन्य चरितामृत सेज ही वाज स्पीकिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स, and ocean of love of God was shaking as he was speaking. Uska dil is filled with love of Krishna. And he came the next day to meet Chaitanya. Kya? I'm mad now. So this is the highest. Highest means this should increase. Ananda Buddhi Vardhana. My faith is increasing in Krishna. My desire to serve Krishna is increasing. And even higher, the pleasure of serving Krishna is increasing. That should be the focus. Something should increase. ये तो tendency है। कुछ नहीं इंक्रीज होते तो बच्चे हो गए, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, मतलब सन्स, ग्रैंड सन्स। कृष्णा इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग, सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपैंड, अवर नेम शुड एक्सपैंड, अवर फेम शुड एक्सपैंड, अपना धन एक्सपैंड हो। दीज आर ऑल एक्सपैंडिंग, बट द हाइएस्ट प्लेटफॉर्म इज व्हाट शुड एक्सपैंड? दैट्स द ओनली पोजीशन ऑफ अ डिवोटी। अंत में खाली आपको ये ही पोजीशन रहेगा। क्या रहेगा? ना तो बॉडी नहीं रहेगा, दैट इज डिस्कस हियर, घर भी नहीं रहेगा, पैसा भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। योर ओनली पोजीशन विल बी योर फेथ इन कृष्ण। कितना विश्वास है, बिकॉज उस समय खाली यही चीज डिपेंड से निर्धारित होगा आप कहाँ जा रहे हो, कितना आपको। हम लोग किस चीज के लिए आए? हम लोग वी हैव कम टू द मूवमेंट टू डेवलप फेथ एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो कितना हम फेथ डेवलप कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू डेवलप फेथ वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर सेज वन टाइम, ये said if you do not follow rules and regulation all doubts will remain, सारे डाउट्स रहेंगे आपको, बिकॉज आपको कन्विंस नहीं हो पाओगे। करेक्ट? समटाइम्स कितना टाइम लोग आते हैं, वी ट्राई टू कन्विंस, दे डोंट गेट, बिकॉज दे डोंट फॉलो द रूल्स। वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड इन द बिगिनिंग ट्रू, बिगिनिंग में हम सिंपल रूल्स बताते हैं, धीरे 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 एज पर्सन बिकम्स मोर सीरियस वी रिवील मोर एंड मोर। इन द बिगिनिंग तो डर जाएगा, so we reveal more and more, but as he starts, then when the rules are followed, then another nivritti will happen, then nishtha will come. Nishtha will not come without following bhajana kriya properly. If you are doing, there is a shloka that if you do bhajana kriya on your own, what is the shloka? Then it is no use. Ye shastra vidim usrajya, that is one. And there is one more shloka which says Shruti Smriti Purana Adi Pancharatrikim Vidim Bana, है ना? एकांत की हरेर भक्ति उत्पादित कल्पते. It's like many people are doing at home, they do. It's good, at least they're trying to do something spiritual, but they don't take guidance. कुछ इधर उधर से बना के कर लिया. They don't develop faith. All doubts are there. उनको जरा खरोचो, बहुत doubts उनके पास. Why? They don't follow vidhi.